जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी तुहानू इन्नियां ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना सानू गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਰਬਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਭਜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਬਟ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਨ, ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਈ ਨੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग पंजाब से अपना लेकर मेरे गुरुपा के चरणों में हाजिर हुई हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करें। और गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ करना। और जो मेरे गुरुपा हैं, आप जो भी बुलवाना चाहेंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मेरा शुक्राना है। मैं अपने समर वेकेशन की छुट्टियों में मायके आई हुई हूँ। कल ही आए हैं। तो मेरे मम्मी जो हैं, मम्मी और ब्रदर हैं, पापा बायोलॉजिकली जो मेरे थे उनकी पहले ही बहुत पहले ही उनकी मतलब हमें छोड़कर जा चुके, गुरुजी के चरणों में जा विरासे हैं। तो मेरा भाई है, उसने छोटी ही उम्र में बहुत जिम्मेवारियां अपने ऊपर उठा ली हैं। उसको देखकर बहुत दिल दुखी होता है कि छोटी सी उम्र में वो इतना कुछ कर रहा है, घर चला रहा है, सारी जिम्मेवारियां उसी पर हैं। छोटा सा ही था, पापा की डेथ हो गई थी और बहुत कुछ उसने सहा है, बहुत कुछ देखा है। कोई चाचा, कोई मामा, कोई रिश्तेदार, कोई अपना नहीं बनता। बहुत छोटा था वो, 6-7 साल का ही था जब पापा की डेथ हुई थी। और अब वो 20-22 साल का हो गया संगत जी। तब से मतलब इसने बहुत दुख सहे हैं, मेरी मम्मी ने भी, मेरी मम्मा ने भी। और हम 3 सिस्टर हैं और एक ब्रदर है। सिस्टर भी एक मेरी अब नॉर्मल है संगत जी। तो मैंने आज उठते ही मेरे मतलब जैसे मैं सुबह आज अपने मायके में उठी सुबह, तो देखा तो मेरा ब्रदर गुरुजी की संगत है, मेरी मम्मी भी, और उनका स्वरूप है घर पर। तो मेरा ब्रदर कोई पूजा पाठ कर रहा था, ये नहीं पता मुझे क्या कौन सा पाठ था, कैसा था। तो उसको देखकर मेरे मन में गुरुजी के उठते ही यही एक अरदास करी मैंने, गुरुपा इसकी लाइफ बना दो,
गुरुपा बहुत टूटा हुआ है वो अंदर से, बस किसी को बताता नहीं है। इसकी लाइफ बना दो, इसकी जो परेशानियां हैं दिमाग में जो चल रही हैं उसको ख़त्म कर दो। बहुत कुछ उसने सहा है, अभी भी रेंट पर रह रहे हैं। घर है अपना बट वो जो है कम है, मतलब दूसरे मतलब एक घर में रेंट पे चढ़ाकर अपना घर आप खुद रेंट पे रह रहे हैं ये। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा। मेरी मदर को, ब्रदर को बहुत ज़्यादा। मैं गुरुपा आपके आगे यही अरदास करती हूँ कि मेरे ब्रदर की लाइफ बना दो, उनको ब्लेस करो। और आपका एक मैसेज अभी भी आया थोड़ी देर पहले कि हाँ मैंने तेरी जो अरदास है वो सुन ली है और तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी नहीं हैं, काफ़ी बड़ी हैं, बहुत सी हैं, तो मैं उसे ठीक कर दूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मायके परिवार पर भी और अपने परिवार पर भी मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने घर से दूर आई हूँ गुरुपा, मेरे घर में भी अपने छत्र छाया में मेरे पति अंकल को रखना, मेरे बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। और गुरुपा नेगेटिविटी हो ही रही है, आप कहते हो तुझे वैसे ही टेंशन आती है कि तेरे घर में नेगेटिविटी आया है। गुरुपा नेगेटिविटी मुझे तब फील होती है गुरुपा संगत जी, जब मैं रात में सोने लगती हूँ तो जैसे ही रात का मतलब 11:30 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद 12 से लेके 4 बजे तक एक तो मुझे नींद नहीं आती, एक अंदर कोई चीज़ एकदम जैसे इंसान होता है ना थोड़ा सा नींद में होता है, कच्ची पक्की नींद में, तो एकदम कोई चीज़ आके अंदर एकदम पत्थर की तरह बढ़ती है, मतलब एकदम मेरी आंखें खुल जाती हैं ज़ोर से, जैसे बंदा सरप्राइज़ करके अपनी आंखें खोलता है ना, इस तरह से मेरी आंखें खुल जाती हैं और कोई चीज़ मेरे अंदर आके एंटर करती है और उसके बाद वो मुझे नींद नहीं आती। पहले नींद आ रही होती है, उसके बाद मेरी नींद उड़ जाती है। 4 बजे तक मेरे दिमाग चलता रहता है पर नींद नहीं होती। अब ये नेगेटिविटी नहीं है तो गुरुपा क्या है मुझे नहीं पता, तो गुरुपा आप ही देखें, इसे भी इसका हल करें गुरुपा, प्लीज़ 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 मेरे गुरुपा इसका हल करें। मैं बहुत परेशान हूँ, जब नींद पूरी नहीं होती तो गैस बन जाती है और सिर दुखता रहता है, बंदा ना तो कोई किसी से ढंग से बोल सकता है। बाहर आई हुई हूँ मैं अपने मायके, कोई आता है, बहन है, जीजा जी हैं, सिस्टर है ना, और मम्मी हैं, ब्रदर है, कोई कुछ पूछता है, कुछ खाना है कुछ लाएं, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मुझे तो नींद ही नहीं आती। अब नींद नहीं आती, रेस्टलेस रहता है बंदा, तो गैस सिर पे चढ़ी रहती है सारा दिन, ना कुछ खाने को दिल करता है ना कुछ करने को दिल करता है। तो गुरुपा प्लीज़ आप कृपा करें। गुरुपा का एक और मैसेज आया कि तू ज़्यादा मत सोचा कर कि आज जाना है, कल जाना है, कहाँ जाना है ना, तो घूमने चली जा। पैसों क्या है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, ये समय नहीं आएगा, वक्त नहीं आएगा। तो गुरुपा कहीं घूमने भी जाना है तो प्लीज़ आप तो कहते हो कि बिना पैसों के गुरुपा, ये दुनियादारी है यहाँ पर। कहते हैं ना पैसे का पे जहाँ जाओगे वहाँ पर हर जगह पैसा ही लगता है, पैसे से ही घूमा जाता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। यहाँ पर हम इंसान हैं, इंसान जब इंसानी फितरत में लोग यहाँ पर एक कहते हैं ना कि पानी भी पिलाना है, आज पानी भी बोतल भी लेनी है तो वो 20 रुपये की मिलती है। तो संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे आज ऐसा मैसेज दिया। तो गुरुपा आप चलो, आप कहते हो तो नहीं करूँगी ऐसा कुछ मैं, बट गुरुपा बिना पैसे के कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, अपने रिश्तेदार, अपने सगे बच्चे भी नहीं पूछते बिना पैसों के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर पल रोम रोम का शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना और ये हमारी प्रॉब्लम्स और अरदास सुनना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र ओम से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लख लख प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बेटी बनाया, उसके लिए मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ, ऋणी हूँ। मेरे ज़िंदगी में माँ बाप की कमी थी, बचपन में ही माँ मर गई थी गुरु जी। पिताजी भी मतलब नहीं के बराबर थे और 10वीं में थी तब पिताजी की डेथ हो गई थी, तो पिताजी का भी प्यार नहीं मिला। तो मैं सोचा था कि ज़िंदगी में तो माँ बाप का प्यार मिलेगा ही नहीं। तो गुरु जी आपने मुझे बेटी बना के बहुत बहुत वो करा मुझ पे। मैं तब से बहुत खुश हूँ जब से आपने मुझे बेटी बनाया। मैंने सोचा चलो पिताजी का तो प्यार मिला, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े परमात्मा का बेटी बनाना मेरी सौभाग्य की बात है गुरु जी। मेरा तो इस जन्म धन्य हो गया गुरु जी, धन्य हो गया। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी बेटी बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे की तरफ से, आपका नाती हुआ उसकी तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। आपके दामाद मेरे पति की तरफ से भी अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए, उसकी बुरी संगत से छुड़ाइए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जिद्दी है, उसका जिद्दीपन हटाइए और घर समय पर आइए। 10 बार फ़ोन करो तभी भी समय पर नहीं आता। उसकी रक्षा करिए गुरु जी, उसके साथ रहिए हमेशा, उसकी रक्षा करिए। अब मैंने आपको सौंप दिया उसको, अब वो आपके सुपुर्द है। अब जो करना है आपने करना, उसको सही रास्ते पर लाइए और उसका जिद्दीपन छोड़िए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका बार बार मैसेज आ रहा है कि 2 औरतें तेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई। तो गुरु जी वो 2 कौन औरतें हैं? मैंने तो कभी किसी के लिए ना तंत्र मंत्र करा, ना किसी का बुरा करा। तो गुरु जी उनका चेहरा दिखाइए मुझे और आप उनको आप ही करिए सही। उनको सुबुद्धि दीजिए कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसे उल्टे काम। तो गुरु जी मेरे बच्चे से उनका पीछा छुड़वाइए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरु जी, बच्चे की रक्षा कीजिए गुरु जी। बच्चे की रक्षा करने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मेरा परिवार आप ही के सुपुर्द है गुरु जी, इसकी रक्षा आपने ही करनी, अपनी बेटी के परिवार की रक्षा गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज आया था कि वो संगत ने बोला था मैसेज में कि मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, तो कि दुर्गा माता के शेर का मुंह खुला है। तो मैं तुरंत अपने मंदिर में आई तो देखा मैंने सही में दुर्गा माता के शेर का मुंह खुला है मेरे इसमें। तो इससे भी नेगेटिविटी फैलती है। तो गुरुजी ये मूर्ति तो 25-26 साल पुरानी है, तो गुरुजी आपका हुक्म है तो मैं अब नई मूर्ति का वो करूँगी। और आपका आया था कि मूर्ति को पानी में विसर्जित करना चाहिए गंगा में, तो हम हरिद्वार जाके करेंगे क्योंकि हम तो देहरादून में ही रहते हैं तो कर सकते हैं पास। और गुरुजी आपका एक और मैसेज आया था कि तुम्हारे घर में वो है स्पीकर पुराने। तो हाँ गुरुजी मैंने देखा तुरंत बेड में नीचे पड़ा था, बेटे के बेड के नीचे।
तो स्पीकर था वो शादी का, तो मैंने उसको भी तुरंत फेंक दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हमें ये छोटी छोटी बातों को बताने के लिए। गुरुजी आप हमारी रक्षा करते हो, आपको तो सब मालूम है गुरुपा, आप तो अंतर्यामी है, आप तो महाप्रभु हो, आप तो भगवान हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैंने आपका जो स्वरूप है, तो पहले मैं ले रही थी, आ रहा था इसमें फ्लिपकार्ट से, तो मैं ले कर रही थी, फिर मुझे लगा कि भगवान को तो क्या खरीदा जा सकता, हमारी क्या औकात भगवान को खरीदने के लिए। तो गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलवाइए। मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर से मैं आपका स्वरूप लेके आऊं, हैं गुरुजी। तो आप मुझे बड़े मंदिर बुलवाइए, बहुत मन है मंदिर आने का। आपको तो हमने साक्षात देखा नहीं है, तो मंदिर में ही आपके दर्शन हो जाएंगे गुरुजी। हम तीनों को बुलवाइए गुरुजी, बेटे को भी कुछ ऐसे करिए, बेटे को, पति को, हम तीनों को, परिवार को बुलाइए गुरुजी। हम स्वरूप सोच रही हूँ वहीं से ले। और गुरुजी आपने कहा था कि लोटे को मैंने तेरे सारे घर के पानी को ब्लेस कर दिया है, तो गुरुजी ब्लेस कर दिया है, तो मैंने फिर लोटा, आपने कहा शिव भगवान से टच करा के फिर उसको तुम जल प्रसाद में पी सकते हो। तो गुरुजी मैं सुबह 108 बार मंत्र जाप करती हूँ, और फिर मतलब प्रसाद पिलाती हूँ। जब बेटा घर में रहता है तो उसको पिलाती हूँ, जब नहीं रहता है तो पति को पिलाती हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारे हमारे लिए इतना सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप तो इतना पूरा विश्व को देख रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक पहले तो मुझे पता भी नहीं था ब्लैक मैजिक वगैरह क्या होता है, समझ में ही नहीं आता। मैं तो सबसे ही प्यार से बोलती थी, सबसे दोस्ती करती थी, तो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। तो गुरुजी हमने गाड़ी ली, तो गाड़ी में ले जा रहे थे 2-3 दिन बाद, गाड़ी के लेने के 2-3 बाद, तो गाड़ी में वो ऐसा जैसे जा रहे थे तो यूं डंडा फंसा हुआ था, इतना मोटा डंडा बिल्कुल ऐसे इंजन में। इतनी मुश्किल से निकला, कितने लड़के शादी से 2-3 कितने लड़कों ने निकाला उसको, कह रहे थे कि आंटी ये तो ऐसे फंस रखा जैसे किसी ने जानबूझ के फंसाया। तो गुरुजी जानबूझ के तो कोई ऐसे फंसाएगा, ऐसा लग रहा था जैसे तंत्र मंत्र से फंसा रखा है उसे। तो गुरुजी वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट कभी कुछ होती रहती, तो गुरुजी इस चीज को बचाइए, रक्षा करिए इस चीज की, हमारी गाड़ी को भी ब्लेस करिए कि ये चीजें ना हो, उससे भी नजर हटाइए गुरुजी, तंत्र मंत्र जो भी कराए किसी ने उसको हटाइए, और उन 2 औरतों से रक्षा कीजिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारे रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुजी। आपका तो हम ऋण चुका ही नहीं सकते, आप तो वो अंतर्यामी हो गुरुजी, सब कुछ जानते हो। आपकी बेटी को शुक्राना करना नहीं आता, इसलिए देर हो गई। तो आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि गुरुजी का शुक्राना तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं इसी में अपना सत्संग विराम करती हूँ, गुरुजी का मंत्र करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जनों को मेरा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, लख लख प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का संध्या बेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा दीजिए गुरुजी, हर पल ब्लेस कीजिए मुझे आपके सिवा कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है गुरुजी। मेरे मन में सारे दिन आप ही रहते हैं,
कि आप कब मेरे ऊपर चमत्कार करेंगे, कब मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रखेंगे। मुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर दीजिए गुरुजी, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसा आप अपने टेलीपैथी के थ्रू मुझे हमेशा मैसेज करते हैं। प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को भी अच्छा करियर ब्लेस कीजिए, जो उसके डैडी ने सोचा है उसके लिए। और मेरी बेटी का भी अच्छा करियर ब्लेस कीजिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि उसका अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब लग जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका पढ़ाई गुरुजी, उसका पढ़ाई में मन भटके ना, ऐसा कुछ कर दीजिए गुरुजी। वो पढ़े, अपने बारे में सोचे कि उसके लिए लाइफ के लिए अच्छा क्या है गुरुजी। सारी चिंता, सारी फिक्र आप मेरे बच्चों का आप ही देखिए, मेरे हस्बैंड का आप ही देखिए। बिजनेस आप ही का, घर है आप ही का, सब कुछ है गुरुजी दिया हुआ। पूरी ज़िंदगी गुरुजी मुझे भी ब्लेस कीजिए अच्छे लोगों के साथ रहने का गुरुजी। मैं नेगेटिव पीपल को, लोगों को अपने लाइफ में नहीं चाहती हूँ और अब झेल नहीं पा रही हूँ गुरुजी। हटा दीजिए उनको मेरी लाइफ से, उनको दंड दीजिए गुरुजी। वो आप ही कर सकते हैं उनको, उन लोगों को दंड देकर गुरुजी। मेरे हस्बैंड हम लोगों अपनी फैमिली को समझें, दूसरों की बातों में ना आए, जो दूसरे नेगेटिव पीपल लोगों की बातों में ना आए। जैसा वो वो लोग मेरे हस्बैंड को भरते हैं, वो सबसे मुक्ति मिल जाए गुरुजी। दुखों का नाश कीजिए गुरुजी। गुरुजी चमत्कार दिखाइए गुरुजी। हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। सारे दर्द बॉडी के मेरे चले जाए गुरुजी। आपके टेलीपैथी मैसेज के थ्रू हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आती है गुरुजी कि अब अच्छा होने वाला है, अब अच्छे होने वाला है। गुरुजी तो साथ है, हर पल साथ हैं, अंग संग रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहा करिए, मेरे बच्चों के भी, मेरे भी, मेरे पति अंकल के भी, मेरी बेटी के भी, और मेरे पति अंकल का भी झुकाव अपनी तरफ कीजिए गुरुजी, कि वो आपको माने जैसे मैं मानती हूँ आपको। संगत जी, यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का यहीं पे विराम करती हूँ। आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, और मेरे कुत्ते की तरफ से। और शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और शुक्राना सत्संग ये है कि आज जैसे मैं मेरे पति अंकल का बेड साफ कर रही थी, अभी एक्चुअली मैं सत्संग भी सुन रही हूँ एक, तो उसमें इतना वो ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहा है कि लाइक यू नो द सास के द्वारा ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो मेरे घर में भी इस तरह की समस्याएं हैं, और मेरी तो मुझे पता है कि मेरी सास जो है वो मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, और अंदर से बहुत काले दिल की है।
तो ऐसा नहीं है किसी और के लिए वो अच्छी भी हो सकती हैं, पर मैं मेरे प्रति जो है उनकी फीलिंग वो मैं बता रही हूँ कि मेरे मुझे हार्म करने के लिए शी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए वो बहुत अच्छी इंसान हो या किसी का भला करें, आई डोंट नो। तो आज भी क्या बोलते हैं, जब भी मैं सुबह बेड साफ़ कर रही थी जहाँ पे मेरे पति अंकल सोते हैं, तो वहाँ पे उनके बेड के ऊपर भी एक ना लौंग मिला। तो ऐसे तो मैं भी घर में लौंग का दिया जलाती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि जो मैं दिया जलाती हूँ वो उस दिए का मेरे वालों दियों का लौंग था, क्योंकि थोड़ा ना ऐसे अजीब सा मोटा सा लौंग लग रहा था। तो आई डोंट नो, अब उनकी माँ पहले भी उनको चीज़ें देती रहती है। एक तो क्या, मेरे पति अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है उन्हीं लोगों के द्वारा। ऐसे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले तो गुरुजी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं तुम्हारे ऊपर और काली नज़र लगाकर बैठे हैं, लाइक तुमको देखना नहीं चाहते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस, या मतलब तुम हैप्पीली जी रहे हो। मैं क्या इंडिया में भी नहीं रहती हूँ, तो लोगों को क्या हज़म नहीं होता है, ना मेरी साइड में ना मेरे पति अंकल की साइड में। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इसकी लाइफ ठीक क्यों चल रही है। और उसी ब्लैक मैजिक वगैरह के कारण मेरे पति अंकल के पीछे भी बहुत बड़ी बीमारी जो है, नाइलाज बीमारी जो है वो लगा दी हुई है। वो तो गुरुजी ने संभाला हुआ है, तब मतलब मेरा घर बचा हुआ है। और इसी तरह से मुझे भी बहुत मैसेज आते हैं कि तुम्हारा शरीर भी बीमारियों का घर बना दिया हुआ है, ये ब्लैक मैजिक भेज भेज के, और बच्चों को भी तुम्हारे फुल मतलब बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। आई डोंट नो अब किस किस को चिढ़ है और कौन कौन ब्लैक मैजिक करता रहता है, मुझे नहीं पता। एक आध लोगों का चेहरा तो मेरे मायके साइड से गुरुजी ने, मतलब एक मेरी कज़न का 5-6 दिन पहले भी दिखाया था। इसके अलावा मेरे सास ससुर, मेरी ननंद को भी गुरुजी ने एक्सपोज़ किया, अदरवाइज़ उसके ऊपर भी मुझे डाउट नहीं था। सास-ससुर का तो मुझे पता था कि वो बहुत मतलब मेरे प्रति बहुत काले दिल के हैं, पर ननंद का मुझे पता नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से पिछले 1 डेढ़ साल से बताया कि उसको भी भरोसा नहीं करना है तुमने बिल्कुल भी, वो भी उन्हीं के साथ है। तो पता नहीं मेरे पति अंकल के ऊपर क्या-क्या करते रहते हैं, और उनको पति अंकल को अब क्या पता क्या बोला गया है कि किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया है। वैसे तो उनके ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर और हम सबके ऊपर वशीकरण और मारण क्रिया के मुझे बहुत मैसेज आते हैं, और मुझे लगता है भी, क्योंकि मैं ना सडनली ऑब्जर्व करती हूँ कि जैसे मेरे पति अंकल भी मान लो ठीक बैठे हैं ना, लेकिन थोड़ी देर में ना वो डाउन सा लगेंगे, मतलब जैसे फेस मतलब डाउन सा हो जाएगा, जैसे होता है ना कि बॉडी में जान ही नहीं बची। बाकी मतलब हम चारों में कभी कभी तो ऐसे पूरी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मतलब क्या हो गया शरीर को, उठने का मन नहीं करेगा। मेरी कभी कभी बहुत हालत खराब हो जाती है। तो सत्संगों में ये सुनने को मिलता है कि एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक जो है वो तुम्हारे ऊपर एवरीडे किया जाता है। और आज जैसे पति अंकल के बेड पे भी मुझे एक लौंग मिला, तो मुझे मतलब ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ वो, क्योंकि वो मतलब जाते ही रहते हैं माँ बाप के पास, तो डेफिनेटली वो वहाँ से उनको कुछ करते होंगे या देते होंगे। अब क्या पता उनके माइंड में क्या डाला गया है कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, जबकि है उल्टा। मैं तो दिन रात हस्बैंड की मतलब लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ, क्योंकि कौन अपने पति को वो करना चाहता है ना, या कौन औरत अपना घर खराब करना चाहती है, कोई नहीं करना चाहती। वैसे तो कौन माँ अपने बच्चे का भी घर बर्बाद करना चाहती है, लेकिन माएँ भी तरह-तरह की होती हैं, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ जेलसी के लोग जो है वो अपने बच्चे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अब मेरी सास को बड़ी गलतफ़हमियाँ हमको लेकर कि उसके बेटे को मैंने छीन लिया, क्योंकि वो ये सब चीज़ें मेरे मुँह पे बोल चुकी हैं, और जादू टोने से रिलेटेड चीज़ें भी वो मेरे मुँह पे बोल चुकी हैं कि तुमको जादू टोना करके हम इस घर से निकालेंगे। तो इस तरह की बातें वो कर चुकी हैं। तो इसलिए पर मुझे पता नहीं था कि वो लोग मतलब इतने सालों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैंने उस चीज़ को आया गया कर दिया था, बिकॉज़ मुझे लगा कि गुस्से में कई बार क्या होता है, जब घर में 100 डिस्प्यूट होते हैं, तो कई बार आदमी गुस्से में बोल देता है, जो बात वो बोल देता है उसका वो मीन नहीं होता है।
तो मैंने कभी उनके ऊपर डाउट नहीं किया। और मैं वैसे भी, मैं संगत जी मैं बोलूँ, मैं बहुत सीधी-सादी हूँ, ना मैं किसी का बुरा करती हूँ और मैं सोचती भी नहीं हूँ कि कोई मेरा बुरा करता होगा। और गुरुजी के संगत बनने के बाद तो आप में इतना सुधार आ जाता है कि जो आपके अंदर अगर कालापन थोड़ा बहुत होता है ना, वो भी गुरुजी पूरा आपको अंदर से प्यूरिफाई कर देते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे में मुझे रियल में मेरे ऊपर कोई कुछ ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं गुरुजी से मिली तो साल भर से मुझे बस मैं यही मैसेज सुनती हूँ, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, ये वो। और 2-4 बार मैंने देखा भी है, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड पति अंकल के पास कुछ दिया भी था घर में, मतलब उनको कुछ खाने के लिए बहुत साल पहले। तो वो इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं। पर अब जब मैं गुरुजी के मैसेज सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अभी भी उनका ये प्रोसेस कंटिन्यू है। और अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी किसी आंटी का, तो मेरा दिल जो है वो बहुत मतलब डर गया। मैंने सोचा एक मैं मेरा सत्संग कर लूँ, तो जो गुरुजी ने सेवा दी हुई है, तो तब मैंने एकदम से वो सत्संग जो मैं सुन रही थी वो बंद किया और मेरा सत्संग करने लगी। तो संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं ना, अब मेरी ज़िंदगी में भी ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं। इनको आप प्रूव नहीं कर सकते कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें हैं ना, अब उनको आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते। वो किस तरह से आपको हार्म कर रही हैं, हमें पता नहीं। हमारी बॉडी को वो कैसे नुकसान पहुँचा रही हैं अंदर-अंदर, हमें पता नहीं। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी इन लोगों से पीछा छुड़ाओ, या तो अब इनको लेकर जाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी जी ली, अच्छे खासे बूढ़े हो गए हैं। अभी बुढ़ापे में उनको अब भगवान का नाम लेना चाहिए, कि बजाय कि हमारे ऊपर फ़ोकस करें और जादू टोना करके हमें फ़िनिश करें। तो मैं अभी सत्संग में सुन रही थी कि मतलब तुम्हारी जो सास है, मतलब वो आंटी बता रही थी कि उनकी जो सास है, तो उन्होंने उनको बर्बाद करने की ठानी हुई है। तो मेरी सास भी इस तरह की नेचर की हैं कि वो जिसके पीछे लग जाती हैं उसको छोड़ती नहीं है वो फिर। तो मैं भी 2 मिनट के लिए इतना डर गई कि वो पता नहीं अब मेरा क्या नुकसान कर डालेंगी वो। हालाँकि मैंने तो गुरुजी के ऊपर डोरी छोड़ी हुई है, सब गुरुजी ने सँभालना है, बचाना है। लेकिन ब्लैक मैजिक वगैरह इतनी मैंने सुना है डेंजरस चीज़ें होती हैं ये, कि जानलेवा होती हैं। और मेरे पति अंकल जैसे-तैसे मौत के मुँह से निकले हुए हैं। तो मैं ना संगत जी, सारा दिन मैं ये डरी रहती हूँ कि आज पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, आज पता नहीं घर में क्या हो जाएगा। ऐसे मेरा एक-एक दिन निकलता है। बच्चों को मुझे थोड़ा-सा भी बाहर भेजना हो तो मेरा इतना दिल धक-धक करता है, मालूम है। घर में भी बच्चे रहते हैं, अगर मैं जॉब पे जाऊँ, घर में बच्चे रहते हैं, तो मैं मतलब डरी रहती हूँ कि घर में उनको कुछ ना हो जाए। मतलब इतना मुझे ये ब्लैक मैजिक का इतना अभी मुझे टेंशन रहने लगी है। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अभी तक हमको सँभाला हुआ है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, घर में कभी भी कोई जानी नुकसान ना हो। वो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं तो आपको बोल-बोल के थक गई गुरुजी, कि उनको सँभालो, उनको आप ठीक करो। कैसे ठीक करना है आप जानो। अभी मैं मतलब मैं तो तंग हो गई हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, क्या नहीं। आप जानो, मैं तो सिर्फ़ दुआ कर सकती हूँ, अरदास कर सकती हूँ कि उन लोगों का कुछ करो। या तो उनको स्टॉप करो या तो उनको लेकर जाओ। जैसे-तैसे उनको हमारी ज़िंदगी से आप निकालो। उनको दोनों को सास-ससुर को भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं है संगत जी। अच्छे खासे हट्टे-कट्टे हैं, हमसे ज़्यादा उनकी मतलब क्या बोलते हैं, चुस्ती चुस्ती है उनके शरीरों में, बुढ़ापे में भी, मालूम है। और हमारी ज़िंदगियाँ उन्होंने जादू-टोना करके मतलब खा ली हुई हैं। हमारी ज़िंदगियों में हम इतने छोटी एज के होकर भी हम लोगों में एनर्जी नहीं है। और इतना वो है ना, इतनी चिढ़ है ना हमारे पैसे के ऊपर या हमारी खुशी के ऊपर, हमारे घूमने के ऊपर, कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और उनकी बेटी के लिए, वो विधवा है, उसके लिए हम इतना करते हैं, मतलब भाई इतना करता है, उसको पैसे भी देता है। मैं उसको इतना प्यार करती थी, अब तो ख़ैर मेरे मतलब दिल से उतर गई है। लेकिन मैं दिल से उतरने के बावजूद मैं अभी भी उसका कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, वो अपने, मैं अपने। लेकिन ये है कि मेरा भरोसा टूट गया है उसके ऊपर से। तो ना इतना उसको मतलब हम करते हैं, इतना उसको प्यार करते हैं, मेरा पति इतना उसको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मेरे बच्चे इतना उसको प्यार करते हैं। मेरी बेटी को तो उन्होंने इतना गंदा वशीकरण किया हुआ है कि मेरी बेटी
बहुत ज़्यादा मतलब उनके इन्फ्लुएंस में है। उसकी मतलब जो बुआ की लड़की है, उसकी जो कज़न है, उसने इतना मेरी बेटी को कैप्चर करके रखा हुआ है ना, लाइक पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उन्होंने करवाई हुई हैं मेरी बच्ची के ऊपर भी, तांत्रिक चीज़ें, कि मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि तुम्हारे बच्चों का करियर ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, और तुम्हारी सास तो ऐसे पीछे पड़ी है कि जैसे मतलब वो उनको जान से, तुम चारों को ही जान से मार दें। वो मतलब तुम चारों ही उसको चाहिए ही नहीं सास को। इतना उसका मतलब वो अपने मन में कालापन पाल के बैठी हुई है। ठीक है, घर में 100 डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी की जान के पीछे पड़ जाए। 100 लड़ाइयाँ घरों में होती हैं, उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। कौन किसी के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाता है? कोई नहीं पड़ता है। हमारी तो ऐसी नेचर नहीं है, हर किसी की अपनी-अपनी नेचर है। पर हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं तो हम दूसरे को भी ऐसा नहीं सोचते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे मेरी सास से बचाओ, और ये जो 3 जो मेन लोग हैं इस वक़्त, जो मतलब घर के ही लोग हैं जिनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, इन 3 लोगों से, मेरे सास-ससुर, मेरी नंद और उसकी लड़की, ये 4 लोगों से हमारी रक्षा करो। मेरी नंद का बेटा भी है, अब वो कितना इन्वॉल्व है, कितना नहीं है, उसका तो मुझे इतना टेलीपैथी नहीं आती है। तो उसको भी पता तो है शायद कि जादू टोना वगैरह हमारे ऊपर किया जाता है। पर मैंने तो अभी ये सोचा है कि साँप की औलाद साँप ही होती है। मैं तो अभी किसी को भरोसा नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट गुरुजी और मेरे 2 बच्चे। इसके अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो भगवान के सुपुर्द कर दी है, भगवान के लड़ लगा दी है मैंने अपनी ज़िंदगी। मुझे अभी भगवान के अलावा मैं इंसानों के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जिसका किया ना संगत जी, उसी ने मुझे मतलब उसी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने लोगों का गिनाना नहीं चाहिए, मतलब अगर आप किसी का अच्छा करो तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जिसका किया, चाहे वो फ़ाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, इमोशनल हो, मैंने जिसका किया ना उसी आदमी ने मुझे डसा है। तो मेरा ना अभी इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। लेकिन गुरुजी ने मेरी बहुत सारी आँखें खोली, स्पेशली गुरुजी ने मेरी नंद के लिए मेरी जो आँखें खोली, वो गुरुजी ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया, क्योंकि एक बार मैं मेरी नंद के पास मेरे गहने तक छोड़ने का सोच रही थी। हालाँकि मुझे पता है कि वो ₹100 के लिए भी मतलब ₹100 भी मेरे से ले लेती है वो वापस, तो मुझे उसका लालच पता है। लेकिन मैं इतना तक भी सोचती थी मतलब, लेकिन अभी तो मैं नहीं किसी के ऊपर भरोसा करती हूँ, और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी इन इन ज़ालिमों से हमको बचाओ, मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं अभी थोड़ी देर 1 घंटा पहले देख रही थी, अचानक मेरे हस्बैंड ठीक थे, एक्टिव थे, लेकिन मैं 1 घंटा पहले देख रही थी कि उनकी बॉडी ना मुझे ड्रेन सी मतलब ऐसे लगने लगी कि मतलब जैसे बड़े थके हुए लगने लगे वो। हालाँकि वो शो नहीं करते हैं, पर आई कैन फ़ील। तो ना मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब इनका ध्यान रखना। पता नहीं अब जैसे मुझे वो लौंग भी मिला बेड के ऊपर, पता नहीं अब उनको क्या-क्या बोला जाता है और क्या-क्या उनको भेजा जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मेरे ऊपर, अभी मैं दिया वारा करती हूँ घर में, अगर कपूर की आरती भी करूँ तो मेरे हस्बैंड को डाउट रहता है कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, शायद मैं जादू टोना कर रही हूँ। जबकि मैं तो जादू टोने वालों से बहुत दूर हूँ। मैं तो भगवान की आरती कर दूँ, कपूर जला दूँ, या जिस तरह से गुरुजी गाइड करते हैं कि कभी वहाँ दिए में लौंग डाल दो या कुछ। तो मैं तो बस यही नज़र उतारने के लिए या सब चीज़ों के लिए जो गुरुजी करवाते हैं मैं तो वही करती हूँ। इसके अलावा ना मैं पंडितों में बिलीव करती हूँ, ना मैं ये तांत्रिकों वगैरह से तो मैं कोसों दूर हूँ। अभी तो मैं गुरुजी से मिलने के बाद तो मैं पंडितों तक भी नहीं जाती हूँ। मतलब गुरुजी के अलावा मेरा, मैं किसी को नहीं मानती हूँ। और दूसरा क्या है कि ना ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है। कल भी मैंने अपने संगत में बताया था कि मेरी बेटी को पता नहीं उसकी कज़न ने कुछ बोला गुरुजी के अगेंस्ट, कि वो मेरी बेटी जब मैं जॉब से आई तो एकदम गुरुजी के अगेंस्ट हो गई थी, और मेरे पति अंकल तो पहले ही मतलब अगर मुझे रात को दिया भी करना हो उनके सामने घर में तो वो मतलब बोलते रहते हैं, ये तुमने क्या जलाया हुआ है घर में। कल मैंने गुरुजी का जल प्रसाद एंट्रेंस पे छिड़का तो वो दीवार पे छींटे थे, तो ये पता नहीं तुमने ये तेल छिड़क दिया है, निशान पड़ जाएँगे। तो मैंने कहा तेल-वेल नहीं छिड़का है, पर मैंने बताया भी नहीं कि मैंने जल प्रसाद छिड़का है। क्योंकि मैं ना अभी आजकल मैंने मेरे पति अंकल को भी
चीज़ें बतानी बंद कर दी हैं। अगर मैं जल प्रसाद भी घर में छिड़कती हूँ तो मैं पति अंकल को अब नहीं बोलती, और मैं अभी उनको डायरेक्ट भी नहीं पिला रही हूँ जल प्रसाद। मैं ये जो हमारा पीने का जल होता है उसमें डाल देती हूँ, डायरेक्ट नहीं पिलाती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी माँ को देंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर तो वशीकरण है, तो सारी रिपोर्ट उनकी माँ और बहन लेती होंगी। अब जब माँ और बहन उनकी सारी रिपोर्ट लेती होंगी, तो उसके हिसाब से वो वहाँ से फिर वार करती होंगी। अब मेरे पति को तो नहीं पता है ना, पति अंकल को नहीं पता है कि उसके घर वाले कैसे हैं, पर मुझे तो पता है ना, मुझे तो गुरुजी ने बता दिया है कि क्या है। तो मेरे पति अंकल तो अनजान है, तो वो तो उनसे, और भोले भी हैं मेरे पति अंकल थोड़े से, तो उनसे वो पूरी रिपोर्ट ले लेती हैं। उसके बाद वो वहाँ से वार करती हैं। और कल मैं सत्संग में सुन रही थी कि अब ये वार किया जाता है कि तुम्हारा पूजा पाठ जो है वो कैसे छुड़ाया जाए, या गुरुजी को तुमसे कैसे दूर किया जाए, ताकि उनकी जो ये ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज़ हैं जो तुमको नुकसान पहुँचाने की, वो कैसे तुमको अटैक कर सकें। क्योंकि संगत जी, शायद गुरुजी को मेरी ज़िंदगी में इसलिए आना पड़ा क्योंकि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड बड़े ज़बरदस्त बीमार पड़ गए थे। इतनी उनको बड़ी बीमारी लग गई है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, कि वो शायद नहीं बचते। अगर गुरुजी नहीं होते, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पे नहीं होता, तो वो नहीं बचते। तो इसलिए गुरुजी को शायद डायरेक्ट मेरी ज़िंदगी में आना पड़ा, क्योंकि अब मेरे घर में जो ये जादू टोना है, वो शायद जानलेवा बन गया है, और मुझे इस चीज़ का आभास भी नहीं था। मेरे हस्बैंड बीमार पड़े तो मुझे लगा कि नॉर्मल जो बीमारी होती है, वैसे बीमार हुए होंगे। लेकिन अभी गुरुजी बोलते हैं कि वो बीमारी नहीं है, वो उसको दी गई बीमारी है ताकि वो मर जाए, तो अगर वो कमाने वाला नहीं रहेगा तो तुम लोग रोड पे आ जाओगे ना। तो तुमको बर्बाद करने के लिए उनको अपना लड़का भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई इंसान हो सकता है, ऐसे कोई माँ-बाप हो सकते हैं, ऐसी कोई डायन-बहन हो सकती है दुनिया में। भगवान, मैं ये बोलती हूँ कि इस तरह के रिश्ते किसी को ना दे। कैसा कलयुग आ गया है, इस तरह के रिश्ते परमात्मा किसी को ना दे। इससे तो मैं बोलती हूँ अकेले भले हैं। इस तरह के लोग किसी की ज़िंदगी में ना आएँ। ऊपर से कुछ और लोग भी हैं रिश्तेदार, जो कि मुझे पता है कि वो हमारे ऊपर बहुत जेलस हैं। वो जादू टोना करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, पर काली नज़र तो उनकी ज़रूर हमारे ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं मेरे मेरे रिलेशन में, मेरे कज़िन्स वगैरह हैं जिनकी बहुत काली नज़र मेरे ऊपर है, और जो नहीं, मुझे जब वो घूमता हुआ देखते हैं, मुझे हँसता हुआ देखते हैं, तो उनको बहुत मिर्ची लगती है। हालाँकि वो सोशल मीडिया में मेरी फ़ोटोज़ वगैरह को लाइक डाल देते हैं, पर मुझे अंदर की बात तो मुझे पता है ना, अंदर से तो वो लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं, तो कि किस तरह के लोग हैं। तो वही है कि अभी मैं तो किसी को अपना नहीं मानती हूँ। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, मेरे घर से पहले तो मेरी सास से पीछा छुड़ाओ। ये जो मेरे सास, ससुर, मेरी नंद और उसकी बेटी, इन चारों से हमको प्लीज़ प्रोटेक्ट करो। उसके अलावा भी अगर कोई और है तो उससे हमको प्रोटेक्ट करो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मेरा कोई बुरा ना चाहे। प्लीज़ मेरे घर की रक्षा करो। ये घर मैंने आपके हवाले कर दिया, आपका घर है, आपने इसको देखना है। मेरा परमात्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है गुरुजी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज़ इस घर को आप देखो, यही मेरी अरदास है। मेरे घर में कोई जानी नुकसान नहीं हो। रोज़ बड़े मैं गंदे-गंदे मैसेज सुनती हूँ कि अकाल मृत्यु का योग है, ये तेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, ये तेरा बेटा मरने वाला है। इतने के गंदे मैसेज आते हैं, सत्संग के आते हैं, आई डोंट नो वो रियल में है या व्हाटएवर, बट आते हैं। तो तो ना बहुत मन डर जाता है। बच्चों को घर में भी छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कहीं कुछ आग वाग ना लग जाए घर में, या कुछ हो ना जाए। और मतलब तो ना बहुत ऐसे टेंशन रहती है मालूम है। तो गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी मेरे घर को संभालो, और हमारे अंग संग रहो। जितना भी आपने अभी तक संभाला है गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अगर कभी भी किसी का दिल दुखाया है, चाहे वो मेरी सास हो, ससुर हो, नंद हो, या वर्ल्ड में किसी का भी मैंने दिल दुखाया है, किसी प्राणी को मैंने हार्म किया है, मतलब जीव जंतुओं को मैंने अगर हार्म किया है, किसी बच्चे को मैंने अगर हार्म किया है, किसी को भी दुनिया में मैंने हार्म किया है, तो प्लीज़, या दिल दुखाया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दें मालिक। मेरे से जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और यही अरदास करती हूँ कि मेरा कोई भी अंदर दिल से मेरे लिए कोई कालापन ना रखे, मेरा नुकसान ना करे, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, पूरी सृष्टि के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखिए।
और सबका भला कीजिए, मेरे से सबका भला करवाइए। मेरे तीनों ये जो परिवार के मेंबर हैं, इन तीनों को अपने साथ जोड़िए, अपनी मेहर रखिए। मेरे कुत्ते का कल्याण कीजिए, वो भी मैं चाहती हूँ कि उसको भी बेचारी को मोक्ष मिले। मतलब उसका भी कल्याण प्रभु आपने करना है। बाकी मेरे माँ-बाप के लिए हालाँकि वो आपके चरणों में हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परमात्मा आप उनको भी मोक्ष दिलाकर अपने चरणों में रखें। एक मेरा सगा भाई है जिसकी 3-4, 4-5 साल पहले डेथ हुई है हार्ट अटैक से, उसको भी आप मोक्ष दिला के अपने चरणों में रखें। मेरे मायके का भी भला करें और उनको भी अपनी चरण शरण में लें, मेरे भाइयों को, मेरी भाभियों को, उनके बच्चों को। मेरे ये पति अंकल की साइड के जो लोग हैं, उनको सद्बुद्धि दें कि वो हमारे ऊपर गंदी चीज़ें ना करें। मेरी सास को सद्बुद्धि दें कि उस औरत का अब सुधार करें गुरुजी। और मेरे दिल में भी उन लोगों के लिए कोई कालापन ना रखें और सब कुछ सही रखें। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका कल्याण करें, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की इसी तैयारी करती हूँ। शुक्राना जय गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।